Yes, good morning all. My PPT is visible to you. Yes, sir. Okay. So in continuation with the last lecture, today I will try to wrap up DNS, that is domain name service or system. Till now we have discussed about these things like distribution of namespace. In distribution of namespace, we have discussed about hierarchy of name server, okay, how the hierarchy is done using zoning technique, using root server, using primary and secondary server, right? So after that, we have discussed about how the DNS is implemented in the internet, and basically the entire DNS database is divided into three sections. Number one is generic domain, number two is country domain, and number three is bus domain. And I have discussed important point regarding these domains. Now comes the resolution. How the resolution of any query is done in the DNS environment. Resolution means mapping of a name to the address or mapping of a address to a particular DNS name. That is basically known as resolution. So mapping a name to an address or an address to a name is basically known as address resolution. Now, there is one more term, important term in the resolution process, that is resolver. And who is resolver here? Can anyone guess who can be the resolver? Yes, anyone? Who could be the resolver? The DNS environment. Who could be the resolver? Suppose we are working on a system and you know that a lot of network related applications are running over my system and your systems as well as on your mobile also. So suppose using my browser, I want to access some web page, some website. Okay, so normally I used to write some URL to the address space provided in the web browser. Okay, so whenever I type some DNS or URL into my browser, that browser first will call out a service that is present and running into my system, that is basically known as DNS client. Okay, so some service is always running into my system, that is basically known as DNS client. Now, suppose the client is running here. Now, the query is submitted by my browser to the DNS client. Now, it is the responsibility of the DNS client to resolve that query. Suppose I have supplied the DNS name, it will provide the IP address, corresponding IP address. If I have supplied the
IP address, then it will provide me the domain name. Okay, so the client here will search out the nearest DNS server. Okay, there could be many DNS server जो मैंने अभी तक आपको hierarchy बताई है. So there could be, let me write that, there could be many DNS server. Server 1 suppose, then we could have one more server. Okay, DNS server 2. Okay, we could have one more DNS server, DNS server 3. Okay, so we have 3 DNS server that are running in my area. Okay, server 2 and we have server 2. Okay, now it is the responsibility of the DNS client to resolve that particular query. So it will search out, or first it will send the query to its nearest DNS server, and by seeing my scenario you are able to figure it out that DNS server is the nearest one to the DNS client. So it will send the query to the DNS server. Okay, if in its database, अब आपको पता ही यहाँ database में क्या होगा, टेबल हो, तो टेबल को चेकआउट करेगा, लुकअप परफॉर्म करेगा, और लुकअप परफॉर्म करने के बाद अगर वो उसको एंट्री मिल जाती है तो इट विल सप्लाई द रेस्पॉन्स टू द डीएनएस क्लाइंट. ऐसे ये वर्क करता है. एंड सपोज इट मे आल्सो हैपन that the DNS server 1 won't be having the entry of that particular query या that particular DNS, और डोमेन नेम उसके डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है. Now what will happen? There are two possibilities. Either DNS server will contact DNS server 2 on behalf of DNS client and ask the same query to the DNS server 2. और again DNS server 2 वही काम करेगा. It will check out its database. If the entry is present, then it will respond to the requester, और requester कौन था? DNS server 1. तो ये इसको रेस्पॉन्ड करेगा, ना कि डायरेक्टली क्लाइंट को. और क्लाइंट ने किससे रिक्वेस्ट किया था? DNS server 1 से. तो DNS server 1 will supply the and will forward the response to the DNS client. And suppose that may also happen, DNS server 2 के पास भी एंट्री अवेलेबल नहीं है. So it on behalf of DNS server 1, it will send the or forward the query to the DNS server 3. That server 2 will think that server 3 will resolve the query. So again, अगर solution होगा, it will provide the solution. Response नहीं होगा, it will again forward the query to the other server. तो पहला तरीका था ये, to resolve the query. Second, is that clear to all? ये सबको क्लियर है? The first way of query resolution, और यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं साथ के साथ? DNS क्लाइंट को DNS रिजोल्वर या रिजोल्वर ही बोलते हैं सीधा. ये रिजोल्व करके दे रहा है इंफॉर्मेशन. किसको? जो ब्राउजर. ये ब्राउजर ने ही तो ये क्वेरी रेज की थी. Yes, any doubt class? In the given scenario, in the explained scenario, सर कितने डीएनएस सर्वर तक ये मतलब मूव करता है? बेटा जब तक क्वेरी रिजोल्व नहीं हो. मैंने हायरार्की बताई थी पूरी. ओके, मैं उसके थ्रू भी आपको समझाऊंगा. देखो, स्टार्ट होता है सपोज लोअर लेवल से, तो वो अपने हायर लेवल से पूछेगा, अपने पेरेंट से पूछेगा क्या उसके पास डेटा है ऐसा कुछ. इफ नहीं है फिर वो अपने पेरेंट को सेंड करेगा. नहीं है देन इट विल सेंड टू इट्स पेरेंट. अभी मैं जो मैंने हायरार्की आपको शो की थी उसके थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, ये कहां तक जा सकती है. राइट, ये क्लियर है सिनेरियो?
तो Yes, sir. ऐसे रेजोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ये कैसी टेक्निक है अगर आपको देख के लग रहा हो तो, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दूसरा फंक्शन थर्ड फंक्शन को कॉल कर रहा है, थर्ड फंक्शन फोर्थ फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज Recursion. यस। दिस काइंड ऑफ resolving the query is known as recursive resolving। ये रिकर्सिव मैनर में वर्क कर रही है। चेक करो भाई, जिसने जिसको कॉल किया था ये उसी को ही रेस्पॉन्ड कर रहा है, इसने इसको कॉल किया ये उसी को ही रेस्पॉन्ड कर रहा है, इसने इसको कॉल किया ये उसी को ही रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो that will run in recursive manner। And the second way is, if everything is okay to you, तो मैं second way की साइड जा रहा हूँ। And the second way is, let me erase it। Yes, so second way is, so now the second way is iterative resolving। Iterative resolving में क्या होगा? Again, the DNS of the resolver will send its query to the nearest DNS server. That means the server one. अब server one के पास again there are two possibilities. Either the server one is having the entry in its database, तो वो directly response provide कर देगा to the DNS client or the resolver. And the second is, if the DNS server one is not having the entry, उसके पास एंट्री अवेलेबल नहीं है, then it will supply the IP address of any of the DNS server that the server one will think that may resolve the query। भाई वो सीधी सी बात, वो ये कह रहा है मेरे पास तो एंट्री नहीं है, but what the server one will think that either server 2 or server 3 will resolve the query। तो उसका IP एड्रेस क्लाइंट को या रिजोल्वर को प्रोवाइड कर देगा। तो ये सीधी सी बात है, इट विल प्रोवाइड द IP एड्रेस। मैं इस केस में मान के चल रहा हूँ ये सर्वर 2 का IP एड्रेस देगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ IP2, इसको क्या प्रोवाइड करेगा? IP2, यानी कि सर्वर 2 का IP एड्रेस। नाउ द क्लाइंट विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द सर्वर 2। अगेन सर्वर 2 के पास भी दो पॉसिबिलिटी, either it would be having the entry, so it will provide the response, either, and it may happen it is not having the entry। again server 2 क्या काम करेगा? it will provide, in case उसके पास एंट्री नहीं है, it will either, या तो वो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है ना, मैं r/ भी कर देता हूँ, r/, और यहां पर भी दो चीज होगी, या तो रेस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाएगा या IP3, यानी कि IP एड्रेस ऑफ सर्वर 3। ओके, अगेन होगा क्या? अब रिजॉल्वर किसको कांटेक्ट करेगा? रिजॉल्वर विल डायरेक्टली कांटेक्ट टू सर्वर 3, क्योंकि उसके पास तो IP आ चुका है। और अगेन द सर्वर 3 either will respond with the response or IP address of some other server that the server 3 will think that will resolve the query. So that is known as iterative resolving। Any doubt? No, sir. Okay, so ये बहुत सिंपल है। अगर मुझे आंसर नहीं पता, मैं किसी और का नाम बताऊं, आप उससे पूछो। दूसरा, मुझे आंसर नहीं पता, जो पहला तरीका था मुझे आंसर नहीं पता, मैं आपके बिहाफ पर दूसरे से क्वेश्चन पूछूं। ओके, सो ईदर ऑफ द टू। अब यहां पर एक इशू आता है, शेयर माय PPT।
ओके, अभी आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये कब तक जाएगा, उसको मैं आंसर कर। सी, इन केस you want, suppose you want to access, आपने जो आईपी एड्रेस सर्च कर रहे हो वो आप सर्च कर रहे हो सपोज मैक्रो .com या फिर abc.macro.com। ओके, आप एक इस आईपी, इस डोमेन नेम का आईपी सर्च कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले सपोज आपके पास जो सर्वर है या आप जो यूज कर रहे हो बेसिकली, राइट, तो सबसे पहले इन केस इफ यू आर इन ईडीयू, आप इस डायरेक्टरी में हो सपोज, सीधी सी बात है, जब वो देखेगा कि डॉट कॉम से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो ईडीयू के पास तो आंसर अवेलेबल नहीं होगा। ओके, so that may happen edu fhda.edu will ask the question to the edu server। edu सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करेगा, इफ द डेटा इज अवेलेबल, ठीक है, तो वो आंसर प्रोवाइड कर देगा। अगर आंसर प्रोवाइडेड नहीं है तो वो अपने पेरेंट को कांटेक्ट करे। भाई जैसे जैसे मैं अपर साइड जा रहा हूं डेटाबेस इंक्रीज होता जाएगा, यस और नो, डेटाबेस विल इंक्रीज, वास्टनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो ईडीयू सर्वर विल कॉन्टेक्ट टू द रूट सर्वर। अब रूट सर्वर को पता है डॉट कॉम सर्वर मेरा कहाँ है, तो डॉट कॉम सर्वर यहाँ कहीं, ओके, क्योंकि ये जो क्वेरी है वो डॉट कॉम से रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है ये डॉट कॉम के अंडर में ही है। ओके, नाउ डॉट कॉम के अंडर में मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, एक तो irwin.com, एक macro.com। सीधी सी बात है abc.macro.com ये मेरा डोमेन नेम है, तो वो किसके अंडर में आएगा बेसिकली, macro.com के अंडर। ठीक है, तो सर्चिंग आपकी ऐसे दिखती है। सपोज आप एक यूआरएल एक्सेस कर रहे हो डॉट इन वाला, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया तीन तरह के सेक्शन बताए, पहला कंट्री डोमेन, दूसरा जेनेरिक डोमेन, तीसरा इनवर्स डोमेन। तो जब डॉट इन वाला डीएनएस नेम है, सीधी सी बात है आप कौन से सेक्शन में जाओगे, यू विल गो इनटू द कंट्री डोमेन ओनली। ओके, जब हम जेनेरिक सपोज कोई .com, .gov, ओके, या .org ऐसी वेबसाइट को मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो मैं कौन से सेक्शन में जाऊंगा, आई विल गो इनटू द जेनेरिक डोमेन, और जेनेरिक डोमेन में ये सारे डोमेन क्रिएट। ओके, सो इज दैट क्लियर? यस सर। रिजॉल्विंग की हम बात कर रहे थे, रेजोल्यूशन। तो मैपिंग रिजॉल्वर में या तो वो नेम की मैपिंग करता है एड्रेस से, या एड्रेस की मैपिंग करता है नेम से, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनवर्स एड्रेसिंग या फिर पीटीआर क्वेरी, राइट। सो देयर आर टू वेज, either the recursive resolution or the iterative resolution। so that is the example of recursive। देखो वही पर, अगर क्लाइंट सपोज मेरा सबसे पहले किसको कांटेक्ट करा है, fhda.edu, इसके पास आंसर नहीं है सपोज, और ये किसको कांटेक्ट करना चाह रहा है, macro.com, abc.macro.com, तो आंसर तो किसके अंडर मिलेगा, macro.com के अंडर मिलेगा, क्योंकि macro.com के अंदर ही सारे डेटाबेस होंगे, केवल एबीसी नहीं होगा, सपोज ईएफजी, एचआईजे, कोई भी जितने भी आपके डोमेन नेम्स होंगे वो macro.com के अंदर में आए। ओके, सो एफएसडीए किसको कांटेक्ट कर रहा है, व्हाट इट थिंक, इट विल थिंक दैट द आंसर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द ईडीयू सर्वर, और उसके पास भी अवेलेबल नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन किससे क्वेरी पुट अप करेगा, रूट सर्वर से। और मैंने आपको पहले ही बताया रूट सर्वर के पास कोई भी डेटाबेस नहीं होता है, ये अपनी सारी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है टू द फर्स्ट लेवल सर्वर, और फर्स्ट लेवल सर्वर में आपका ईडीयू एंड कॉम सर्वर आ जाता है। ओके, कॉम सर्वर विल डेलीगेट और द पास द क्वेरी टू द मैक्रो डोमेन, अगर इसके पास आंसर है इट विल प्रोवाइड यू द आंसर, हो डेफिनेटली इसके पास इस केस में आंसर मिलेगा, देन अगेन द रेस्पॉन्स विल रीच टू द रिजॉल्वर यूजिंग द सेम पाथ।
सेम पाथ को फॉलो करते जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इन केस क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम किसको कॉल किया, आपने एक बार कॉल किया abc.macro.com, ओके, फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया, डेटा अवेलेबल नहीं था fhda.edu के पास। सपोज आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आप उस वेबसाइट को या ये क्लाइंट उस वेबसाइट को अगेन एक्सेस करना चाहता है, क्या सेम प्रोसेस रिपीट होगी दोबारा? सर सेव कर लेगा वो इसको। सेव कर लेगा। इसका मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी बेसिस पर जो सेविंग होती है, आपने सीओ में भी पढ़ा होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा। टेम्परेरी बेसिस पर जो हम सेविंग करते हैं दैट इज नोन एज what? Caching. Yes, Latish. Yes. That is known as caching. So every server in this path will cache the entry. Will cache the entry. और मैं मान के चल रहा हूं abc.macro.com का जो IP एड्रेस रिटर्न हुआ वो कुछ ये रिटर्न हुआ 100.10.10.11, ओके, ये रिटर्न हुआ। तो हर एक सिस्टम, ये जितने भी सर्वर्स हैं, अपने डेटाबेस में एक एंट्री करते हैं कि हो सकता है क्लाइंट को दोबारा से रिक्वायरमेंट पड़े इसकी, है ना। और बेसिकली जो ये लोकल सर्वर है ये तो सेव कर ही ले। साथ के साथ अब आप मुझे बताओ, सपोज यहां पर ये पर्टिकुलर सर्वर कनेक्टेड था, ये सर्वर कनेक्टेड था, है ना। ये भी मैंने क्या नाम दिया इसको, abc.macro, ओके, मैंने इस सर्वर को ये नाम दिया, राइट। अब सपोज ये इंफॉर्मेशन कहां पर होगी, FHDA में भी एंटर्ड होगी। क्लाइंट दोबारा से इस पर्टिकुलर URL को एंटर करता है और मीनवाइल abc.macro.com ने क्या काम किया, कोई बात नहीं, इसको ए मान लेंगे, ओके। abc.macro ने क्या काम किया, अपना नेम ही चेंज कर दिया, उसने इसको कर दिया abd.com, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, इसने अपना IP एड्रेस चेंज कर दिया, हो सकता है, डेट मे बी पॉसिबल। 100.10.10.100 इसका IP एड्रेस अब ये हो चुका है, या तो IP एड्रेस में चेंज हुआ या DNS में चेंज हुआ। अब आप मुझे ये बताओ, क्लाइंट ने जब एंटर करेगा abc.macro.com, ओके, तो सबसे पहले क्वेरी किसके पास जाएगी, सबसे पहले क्वेरी किसके पास जाएगी, abc.macro.com, ये इसको एक्सेस करना चाह रहा है क्लाइंट, क्वेरी किसके पास जाएगी सबसे पहले, Client. नहीं, क्लाइंट से कहां पर, क्लाइंट से कहां पर जाएगी, FHDA, FHDA. ठीक है, यहां पर क्वेरी गई, FHDA के पास जो एंट्री है, कौन सी एंट्री है, अपडेटेड एंट्री है या ओल्डर एंट्री है, ओल्डर एंट्री। तो ये केस क्या बन गया बेटा, इनकंसिस्टेंसी का। अगर हम न्यू सर्वर की एंट्री देखें जो कि यहां मैक्रो में तो अपडेट हो गई है, वो है ना, वो अपने इमीडिएट सर्वर को तो अपडेट करा देगा, बट क्या ये सेम इंफॉर्मेशन यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर अपडेट हुई? नो। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करें इनकंसिस्टेंसी को? भाई FHDA तो अपने एंड पर सही है, दैट इज करेक्ट, जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी वो उसको प्रोवाइड कर रहा टू द क्लाइंट, बट FHDA को अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिली, एंड दैट इज द मेन इशू विद द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होता देयर वोंट बी एनी इशू, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में
अपडेशन को फ्लोट करने में टाइम लगता है। ओके, तो होगा क्या ऐसे इशू में, कभी भी कोई भी सर्वर क्लाइंट को इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करेगा, अगर वो इंफॉर्मेशन इसी के डेटाबेस से आई है, ओके, अगर वो इंफॉर्मेशन इसी के ही ओरिजिनल डेटाबेस से आई है, देन इट विल मार्क दैट एंट्री एज अथॉरिटेटिव, कि ये सर्वर उसका अथॉरिटी सर्वर था। अगर वो एंट्री जो क्लाइंट को इसने प्रोवाइड की वो किसी दूसरे सर्वर से इसने ली है, जो कैश की है इसने, किसी दूसरे सर्वर से इसने ली है, बट इट हैज कैश दैट एंट्री, तो उसको वो क्या मार्क करेगा, अनअथॉरिटेटिव, क्योंकि इसकी अथॉरिटी एफएचडीए के पास तो नहीं थी, वो किसी और के थ्रू आई। ओके, कभी कभी आप अपने फ्रेंड को कोई इंफॉर्मेशन देते हो, अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द इंफॉर्मेशन, आप बोलते हो डेट इज फॉर श्योर। अगर आपने किसी से सुना हो तो आप क्या बोलते हैं, मैंने किसी से सुना, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। तो ये चीज ये सर्वर भी कर रहा है। ये सर्वर अगर कैश्ड वाली इंफॉर्मेशन को सेंड करता है टू द क्लाइंट, देन इट विल से दैट इज अनअथॉरिटेटिव, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर सर्वर। और अगर ये इंफॉर्मेशन दैट इज सेव्ड इनटू इट्स लोकल मेमोरी, पहले से ही सेव्ड थी, तो उसके बारे में सर्वर इज कॉन्फिडेंट एंड इट विल से दैट इज अथॉरिटी, 100% श्योरिटी। गॉट दिस कंसेप्ट आया समझ में? अगर हम कैश करते हैं तो इशू क्या आता है? तो कैशिंग में इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एक फील्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज टीटीएल। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था ये टीटीएल। कोई बताएगा इसके बारे में, व्हाट इज टीटीएल? ये आईपी के हेडर में भी डिस्कस किया था टीटीएल। तो जो भी एंट्री कैश की गई है किसी भी सर्वर के थ्रू, किसी भी सर्वर में जो भी कैश्ड एंट्री होगी जो किसी दूसरे सर्वर से आई होगी, उस पर एक फील्ड मार्क किया जाता है टीटीएल, दैट इज टाइम टू लिव। टीटीएल इज बेसिकली टाइम टू लिव, यानी कि वो एंट्री को कब तक एक्टिव रहना चाहिए। तो सपोज टाइम टू लिव डिफाइन कर दिया 5 मिनट्स, तो वो एंट्री कैश के अंदर किसी भी सर्वर की कैश के अंदर कब तक रहेगा, 5 मिनट्स तक, एंड आफ्टर 5 मिनट्स इट वुड बी फ्लश्ड, या उसको हम इनवैलिड डिक्लेयर कर दें, वो वैलिड नहीं है। उसके लिए फिर दोबारा से आफ्टर 5 मिनट्स दोबारा से यही प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, कि जो भी अथॉरिटेटिव सर्वर होगा उसको कांटेक्ट किया जाएगा थ्रू एनी वे, चाहे वो इटरेटिव मेथड हो चाहे वो रिकर्सिव मेथड हो, दोनों तरीके से। फिर टाइम टू लिव, साथ के साथ एक दूसरा तरीका क्या होता है, एक तो तरीका टाइम टू लिव, दूसरा टीटीएल काउंटर का यूज कर सकते हैं। टीटीएल काउंटर यानी कि एक काउंटर जिसकी वैल्यू को सेट कर दी जाएगी, सपोज 100, ये काउंटर डिक्रीज होना शुरू हो जाए 100, 99, 98, 97 एंड सो। जैसे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वैल्यू फ्रॉम द कैश वुड बी डिलीटेड। ठीक है, एंड सो देयर आर 2 ways टू कैश एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द अदर सर्वर। पहला, या तो हम टीटीएल का यूज करें, जो सर्वर है दैट वुड यूज टीटीएल फील्ड दैट वुड से for how expiration time, that would say about the expiration time of the entry, कितने टाइम के लिए वो वैलिड है। ओके, या सेकंड वे इज टू यूज द टीटीएल काउंटर, जो कि डिक्रीज होता जाएगा आफ्टर एवरी टिक, आफ्टर 1 मिलीसेकंड और ईदर। ओके, वो डिक्रीज होता जाएगा।
एंड व्हेन इट विल रीच टू 0, वो एंट्री अपने आप डिलीट हो जाएगी या इनवैलिड हो जाएगी, उसको यूज नहीं किया जाएगा, अथॉरिटी वे में यूज नहीं किया जाएगा. सो इज दैट क्लियर टू यू हाउ द कैशिंग इज परफॉर्म्ड इन द रेजोल्यूशन? Is that clear, class? Yes, sir. So that is the second way, जो मैंने आपको बताया था, iterative way. Okay, the question would be asked from the fhda.edu. या तो उसके पास response होगा या फिर it will provide the IP address of some other server. Suppose इसका IP address provide किया edu server का, so now the client will ask the same query to the edu server. Again, यहाँ पर भी दो possibility, either the response or the IP address of next server that the edu will think will provide the solution. तो ये अपने parent का basically IP address provide करता है. तो parent कौन था? root server and so on. Okay, तो finally client will go to the magro.com, है ना, उसके अंडर में ही आती थी वो वेबसाइट, suppose abc.magro.com. Okay, so finally magro.com will provide the answer, the response to the client. Okay, that is the iterative, right? और iterative caching आपकी कभी कभी सिस्टम में भी मेंटेन होती है. ओके, जो आपका डीएनएस क्लाइंट है वो भी एक कैश को मेंटेन करता है ना. सपोज आप कोई वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर एक्सेस करो, ओके, बट इन केस कोई आईपी एड्रेस चेंज हुआ या कोई स्पेलिंग चेंज हुई, तो उस केस में अगेन वही होगा, क्योंकि उस कैशिंग की भी एक लिमिट होती है, एक्सपायरेशन टाइम होता है. ओके, बहुत टाइम से आपने एक्सेस नहीं की, अगेन वो ही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, राइट. नाउ कम्स द डीएनएस मैसेज. तो डीएनएस मैसेज टू टाइप्स के, वन इज क्वेरी, वन इज रेस्पॉन्स. ओके, तो यहाँ पर उसका जो फॉर्मेट है डीएनएस मैसेज का वो हम देखते हैं, राइट. वन इज क्वेरी एंड वन इज रेस्पॉन्स. तो अगेन जस्ट लाइक द आईपी हेडर या फिर टीसीपी हेडर या यूडीपी हेडर, यहाँ पर भी एक हेडर मेंटेन होता है इन एवरी डीएनएस मैसेज, वेदर इट इज क्वेरी और वेदर इट इज रेस्पॉन्स. ओके, और इस हेडर का साइज, okay, message it is two types, it would be query or it would be response. So header, यहाँ पर अगर हम query की बात करते हैं, there are two sections only. We have header part and we have question section. यानी कि query क्या है, किस टाइप की query, question क्या है, क्या हमें DNS को नेम में IP एड्रेस में कन्वर्ट करना है या IP एड्रेस को DNS में कन्वर्ट करना है. ओके, सो क्वेश्चन जो भी होगा क्लाइंट का वो क्वेश्चन सेक्शन में आएगा. नाउ कम्स द रेस्पॉन्स मैसेज. रेस्पॉन्स में अगेन टू थिंग्स आर कॉमन, हेडर पार्ट एंड द क्वेश्चन पार्ट. यानी कि जो भी ये आंसर प्रोवाइड करेगा वो किन क्वेश्चन के अगेंस्ट है, सो दैट वुड बी कॉपीड हियर. ओके, नाउ द आंसर सेक्शन, जो भी आंसर है दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय द डीएनएस सर्वर. अथॉरिटेटिव सेक्शन, क्या क्या अथॉरिटेटिव सेक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया, वेदर द सर्वर इज अथॉरिटेटिव और एंट्री इज अथॉरिटेटिव और नॉट. और अगर जो भी ये थिंक करता है कि ठीक है मेरे पास आंसर नहीं है, किसी दूसरे सर्वर के पास आंसर है, तो ये उस अथॉरिटेटिव सर्वर का आईपी एड्रेस यहां पर प्रोवाइड करता है. और एडिशनल सेक्शन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके एडिशनल सेक्शन में आती है, राइट. Now the header part is of 12 bytes. कितने बाइट का होता है ये? 12 bytes का. तो बताएगा मुझे, तो हर एक रो, we are having 3 row, so every row is of how many bytes? If total header part is of 12 bytes and we are having 3 rows, so every row is of how many bytes? 2 बाइट हो जाएगा. How much? 2 बाइट्स. 2 कैसे हो जाएगा जब मेरे पास 3 रो है?
सॉरी 4 बाइट हो जाएगा 4 बाइट। ओके, तो एवरी रो इज ऑफ 4 बाइट। कितना बाइट का होगा टोटल? 4 बाइट। 4 3 या 12। ओके, 4 बाइट, जिसमें कि ये आपका 2 बाइट का है ना, यानी कि 16 बिट्स, और ये भी आपका 16 बिट्स। 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट। So in case of query, identification and flags and question part are used। और बेसिकली बाकी सारे होगा तो हेडर दोनों में सेम ही, लेकिन क्वेरी मैसेज में 3 पार्ट्स में नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं और बाकी 3 पार्ट में जीरोस होते हैं। बट इन केस ऑफ रेस्पॉन्स, यहां पर आंसर रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड में भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और एडिशनल रिकॉर्ड में इफ इट इज यूज्ड नॉन जीरो वैल्यू आएगी। ओके, सो इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या बोलता है, एक हमने आईडी दे दी, उस मैसेज को एक आईडी प्रोवाइड करना। ओके, फ्लैग अभी मैं बताऊंगा फ्लैग्स के बारे में, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है फ्लैग्स में, कितने बाइट का है, अगेन 16 बिट्स का, और आइडेंटिफिकेशन भी कितने बिट्स की होती है, 16 बिट्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चन रिकॉर्ड, यानी कि कितने क्वेश्चन पुट अप किए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट हैज बीन पुट अप बाय द डीएनएस क्लाइंट। नंबर ऑफ आंसर रिकॉर्ड, यानी कि कितने आंसर प्रोवाइड किए बाय द डीएनएस सर्वर, है ना। ये क्वेरी में आएगा, रेस्पॉन्स ये बेसिकली रेस्पॉन्स में आएगा, क्वेरी में प्रेजेंट नहीं होगा। क्वेरी में सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ऑल 16 zeros। देन अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड, अगेन अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट होगा, रेस्पॉन्स के अंदर, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्वेरी। क्वेरी के अंदर ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 16 के 16 zeros हो जाएंगे। देन नंबर ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड, कितने एडिशनल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। Okay, again in case of query all are zeros, and in case of if it is used in case of response यहां कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है। So is that clear? I guess इसको यहीं एंड करना चाहिए, rest thing we will discuss in the next class. So any doubt class related to it, header format, DNS message, तो ये वाला बता दिया अथॉरिटेटिव और ये एडिशनल, ये क्या चीज फील्ड ये सारे फील्ड में डिस्कस करूंगा डिटेल। ओके, फ्लैग्स क्या होता है, व्हाट आर क्वेश्चन रिकॉर्ड्स, यानी कि कितने क्वेश्चन पुट अप किए, हाउ मेनी क्वेश्चन दैट हैज बीन पुट अप बाय द डीएनएस सर्वर, हाउ मेनी आंसर्स आर प्रोवाइडेड फॉर दोस क्वेश्चन बाय द डीएनएस सर्वर। यहां क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, here who is asking the question, DNS client, DC बोल रहा हूं मैं उसको। ओके, यहां भी DNS client, यहां भी DNS client, ये तीनों चीज प्रेजेंट होगी। सर्वर में तो सारे ही होने। अब उन क्वेश्चंस के कितनों के आंसर अवेलेबल है इन द रेस्पॉन्स, तो ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड आंसर रिकॉर्ड्स। ओके, सेम अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड्स, अभी मैंने बताया था अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन क्या होगी, सपोज भाई सर्वर के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो वो दूसरे सर्वर का आईपी प्रोवाइड करता है, तो वो क्या बनेगा, अथॉरिटेटिव सर्वर। ओके, अथॉरिटेटिव सर्वर बनेगा तो उस केस में ये दूसरे का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है यहां इस फील्ड के अंदर। अब नंबर ऑफ अथॉरिटी, अब कितने आईपीस प्रोवाइड करेगा, है ना, तो वो नंबर आ जाए। ओके, और यहां पर एडिशनल रिकॉर्ड क्या, ओके, रिसोर्सेज, बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज रिसोर्सेज। कौन कौन से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज्ड, राइट। तो इसको मैं और डिटेल में फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, राइट। सो इज दैट क्लियर क्लास? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग नाउ। एक बार बुक में ये सारी चीजें रीड आउट कर लेना। द लैंग्वेज इज क्वाइट सिंपल, जो मैंने बताया है बिल्कुल वैसे सेम वर्डिंग है।